welcome back to my YouTube channel, friends. So today we will continue the next topic. In the previous lecture we have studied about the light processes, definition of light process, and we have seen different type of light processes. Also we have seen the correlation between different light processes in organisms. Now the next topic is autotrophic mode of nutrition. So here in this lecture we will see autotrophic mode of nutrition in detail. So I think you all are aware now with the term autotrophic nutrition. So autotrophs simply means what? Auto means self, trophic means nourishment. Okay, auto means self and trophic means nourishment. So in the autotrophic mode of nutrition, the organisms which are making the food material by themselves and by the utilization of very simpler substances, and simpler substances are mainly CO2 and water. And these organisms make the food material in the presence of sunlight. So these are autotrophic. But if we talk about the chemotrophic organisms, so they do not synthesize food in the presence of sunlight. They are making the food material by themselves, but they are utilizing the chemical energy. Okay, but if we talk about the autotrophic, so autotrophic ones are making the food material only in the presence of sunlight. Now let's see the whole process of autotrophic mode of nutrition in detail. So first is autotrophic mode of nutrition. So here I have written the reaction of the autotrophic mode of nutrition. So first you can see in this process, the organisms, they take the CO2, okay, they take CO2, they take water, and we know these are the raw material. So these are raw materials. Raw means कि जिनसे चीजें हमारी बन रही हैं, ठीक है? They are not complex, they are very simpler. ये जो raw materials हैं यहाँ पे, हमारी ये raw materials बहुत simpler substances, इसलिए CO2 and S2 को हम क्या बोलते हैं? These are simpler inorganic substances. So why these are simpler? Because their structure is not very complex. इनका जो structure है बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, complex नहीं है. Their structure is very simple. Simple है, that's why these are simple, and these are inorganic. So I think you are aware with this term. If you are not aware with this term, so let me just tell you what does it mean, the inorganic. So inorganic means the substances which do not contain carbon and hydrogen in their structure. Okay, so inorganic substances में जो carbon है, this is carbon and hydrogen, ये absent होते हैं. ठीक है, आपको कोई भी substance अगर पता करना है कि whether this is organic or inorganic, आप simply उसका structure देख के find out कर सकते हो कि yes, this is organic substance and this is an inorganic substance. So inorganic में आपको कार्बन हाइड्रोजन नहीं मिलेगा. So now you can see here CO2 S2O. CO2 में आपको कार्बन मिलेगा पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा. मतलब ये दोनों चीजें साथ में अवेलेबल होनी चाहिए, एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए. Then only they will be called organic. अगर कोई सब्सटेंस में कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ आपको दिख रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे ऑर्गेनिक. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस रिएक्शन में आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है. आप खुद ही ये चीज समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस यह इस रिएक्शन में कौन सा है. तो यहाँ पे आप देखो CO2 एंड वाटर, इसमें आपको कहीं भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा. हियर यू कैन ओनली सी द कार्बन, दिस इज कार्बन. ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन नहीं है, आपका सिर्फ कार्बन है. सो दिस इज योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट इज वाटर. दिस इज फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी का फॉर्मूला होता है ये. इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, आपको इसमें कार्बन देखने को नहीं मिलेगा. सो अगेन दिस लैक्स कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, सो दिस इज ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. नाउ आई एम रबिंग इट. So these are simpler organic substances. When these two substances combine together, they are combining together and forming this substance. ठीक है, they are forming this substance. ठीक है, and this is your carbohydrate. ये आपका क्या है? This is your carbohydrate.
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट, कल हमने बात की थी, वन ऑफ द न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फॉर्मूला है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। सो नाउ अब हम फिर से देखेंगे, कार्बन है इसमें, यस कार्बन इज अवेलेबल, इट इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन है इसमें, यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस, ठीक है, दोनों अवेलेबल हैं। तो क्या हम इसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं? यस, दिस इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि आपको कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में मिल रहा है। इनके अलावा अगर मैं और एग्जांपल्स लूं तो आप देखो HCl, दिस इज केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? अगेन हाइड्रोजन अलोन अवेलेबल, Cl है, C इज नॉट अ कार्बन, दिस इज Cl, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड। सो यहाँ पे कार्बन एब्सेंट है, सो दिस इज इनऑर्गेनिक। Okay, now I think this is clear to you. So when these two things combine together, they form glucose, and glucose is the food material. This is synthesized food material in all the green plants, and along with the glucose, the byproduct oxygen is liberated out. Oxygen क्या है? This is byproduct. ठीक है, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनती है और ये रिलीज आउट हो जाती है बाहर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो CO2 है, हाउ द CO2 एंड वाटर दे आर कमिंग इनसाइड द प्लांट। सो आई हैव ड्रॉन हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड द स्टेम पार्ट अलोंग विद द रूट स्ट्रक्चर। सो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी रूट दिखेंगी, ठीक है, ये आपका पूरा स्टेम पार्ट है, एंड दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो लीफ का जो ये बाउंड्री होती है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड लीफ लेमिना, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड लीफ लेमिना बोलते हैं इस बाउंड्री को, दिस आउटर बाउंड्री। नेक्स्ट इज लीफ में सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द लीफ, सो दिस इज मिडरिब, मिड इंडिकेट्स मिडिल, ठीक है, तो दिस इज मिडरिब, ये आपकी मिडरिब है। नेक्स्ट मिडरिब से अब बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं, दीज फाइन ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड वेन्स, ये आपकी वेन्स होती हैं, दीज आर अगेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। अब वेन से भी आपको बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बहुत फाइन ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो आपके होते हैं वेनलेट्स, दीज आर वेनलेट्स, आई एम राइटिंग हियर। These are ventlets. Central tube is midrib. From the central midrib, many branch-like structure arises, which are veins. From the veins, again branch-like structure arises, which are called ventlets. अब सबसे important point ये है कि जो midrib है, आपका जो vein है, and these ventlets, these are made of vascular bundles. ये किन चीजों से मिलके बने होते हैं? These are made by वस्कुलर बंडल। कहने का मतलब ये कि इन ट्यूब्स में भी बहुत फाइन ट्यूब्स होती है, बारीक बारीक ट्यूब होती है, बहुत बारीक ट्यूब होती है, ठीक है, और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? बंडल्स मतलब ऐसा पूरा बंडल, किस चीज का बंडल? ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ऐसी फाइन ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, और वो ट्यूब्स ऐसे अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है वास्कुलर बंडल्स। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं ये दो टाइप की होती है, एक जो टाइप है वो है जाइलम एंड द सेकेंड टाइप इज फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम इज अ वास्कुलर बंडल। अब जाइलम का काम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर प्लस मिनरल, एंड
फ्लोएम का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, बना बनाया फूड, रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है आपका फ्लोएम। और ये दोनों जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो आपके पूरे मिड रिब में, पूरे स्टेम्स में, पूरे रूट्स में और आपके वेन्स में, वेनलेट्स में पूरी तरीके से फैले होते हैं। क्यों फैले होते हैं? क्योंकि जो जाइलम है वो रूट से, ठीक है, नीचे से जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे वो हर एक पार्ट्स में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहुंचाने के लिए वाटर जाइलम काम करता है। और जब पूरे प्लांट्स में जब खाना बन जाता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग पार्ट में, उन पार्ट्स में जहाँ पे खाना नहीं बन पाता, जहाँ पे फूड नहीं बन पाता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उन पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? दिस फ्लोएम, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको ये लीफ लाइक जो लीफ है, जो पत्ती है, इस लीफ में आपको बहुत माइन्यूट से, बहुत छोटे छोटे से पोर्स दिखेंगे, होल्स दिखेंगे, बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो माइन्यूट पोर है, इसको मैंने जूम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, ये इस तरीके से देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा में आपको 2 गार्ड सेल मिलेगी। फर्स्ट गार्ड सेल, दिस इज सेकेंड गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल में आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है और गार्ड सेल के बाहर सेल्स अरेंज रहेंगी। इन सेल्स को बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और इनको सराउंडिंग सेल्स भी बोलते हैं। सराउंडिंग सेल्स मतलब जो गार्ड सेल को चारों तरफ से सराउंड कर रही है, घेर के रख रही है। अब गार्ड सेल्स के बीच में आपको स्मॉल पोर दिखेगा, ये पूरा आपको कैविटी दिखेगी। एंड दिस पोर एंड दिस कैविटी इज द स्टोमेटल पोर। ये आपका स्टोमेटल पोर है। यही वो पोर है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, कि जो भी प्लांट्स में एक्सेस वाटर है वो उड़ जाता है भाप बन के, तो दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी ये स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के बाद में। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्टली आपको ये स्ट्रक्चर दे देंगे और इस स्ट्रक्चर्स में आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दिया जाएगा दैट, यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा दिस इज A, यहाँ आपको लिख दिया जाएगा B, ये बता दिया जाएगा C, इंडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा ये क्या है, तो D पार्ट। यहाँ पे और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोल देंगे E क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हर एक की लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 मार्क प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है नॉर्मली। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो आपको ये पता होना चाहिए हर एक पार्ट्स के नाम, ठीक है। और गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है किडनी शेप। किडनी शेप, आपकी बॉडी में जो अंदर किडनी ऑर्गन होता है उसका शेप भी कैसा होगा, लाइक, तो इसका शेप जो किडनी के जैसा है, तो गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, किडनी शेप। नाउ वी आर ऑन दिस दैट हाउ CO2 एंड वाटर कम्स इनसाइड द प्लांट, ठीक है, एंड हाउ दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द ग्लूकोज एंड हाउ दे रिलीज आउट ऑक्सीजन। सो ये जो माइन्यूट पोर्स है, इन ये पोर्स के थ्रू, ये पोर्स क्या होते हैं, ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। ये जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है, फिर ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो बाहर से जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, हम मेनली फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाहर से जो CO2 है वो इन पोर्स के थ्रू अंदर आ जाएगी लीफ में, ठीक है। और जैसे ही अंदर आएगी तो यहाँ पे लीफ के अंदर CO2 चलेगी। अब रूट्स में वाटर अवेलेबल होता है, यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, तो इन रूट्स में फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये रूट हेयर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर, जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। एंड जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल्स के, कहाँ से, सॉइल से। अब मैंने अभी आपको बताया पूरे आपके स्टेम में, पूरे प्लांट में आपके क्या अवेलेबल होता है, आपका जाइलम अवेलेबल होता है, जो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। कैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, लाइक दिस।
सपोज ये आपका रेड कलर है, ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये वाटर धीरे 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 इन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। Means the water which is absorbed by the root hairs, it will travel to the upside of the stem and it travels and reaches to the leaf. ये कहाँ पहुँच जाएगा, लीफ में पहुँचेगा, ठीक है। लीफ में पहुँचने के बाद जैसे ही लीफ में पहुँचेगा ये वेन्स के थ्रू पूरी लीफ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर। So the water comes from the root by the xylem tissues and the CO2 comes inside through the stomatal pore, ठीक है। So when these two things combine together in the presence of sunlight, ठीक है, sunlight is very much important, ठीक है। sunlight की presence में और chlorophyll की presence में, sunlight and chlorophyll these two are very important constituents. Why? कि जब भी CO2 and water जो combine हो रहे हैं तो उस combination में क्या होता है, I'm just rubbing it, पौच पौच हो रही है। तो CO2 कहाँ से आया आपका, CO2 आया आपका स्टोमेटल पोर से, वाटर आया बाय जाइलम, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो वाटर है, वाटर जो मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये स्प्लिट होगा तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पे कितने रहेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स हैं आपके वाटर के। तो जब ये टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा आपका CO2 के साथ और जो ऑक्सीजन है ये निकल जाएगी आपकी बाहर। As after the splitting of water molecule, the oxygen that is released outside through the minute pores which are our stomata. Okay, so one important question arises here that where are the stomata present majorly, सबसे ज्यादा कहाँ पे stomata available होते हैं। So students जो stomata हैं वो they are available on the lower side majorly of the leaf. ये सपोज आपकी लीफ है, दिस इज लीफ, दिस इज द अपर सरफेस एंड दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। सो दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर सरफेस। सो दीज माइन्यूट पोर्स, दीज स्टोमेटा आर अवेलेबल ऑन द लोअर साइड मेजरली, सबसे ज्यादा नंबर्स में जो स्टोमेटा है वो लोअर साइड में अवेलेबल होते हैं। सो व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग इज अवेलेबल इन द लीफ? सो वेरी सिंपल आंसर इज दैट if the stomata are available on the upper surface, easily transpiration will occur, ठीक है। मतलब जो अगर स्टोमेटा ऊपर रहेंगे तो जो टेम्परेचर बहुत हॉट रहेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से इजीली अंदर से जितना भी वाटर है वो इजीली इवापोरेट हो जाएगा। सो इससे बचने के लिए, सो टू प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ सरफेस, द स्टोमेटाज आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस मेजरली। सो स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब लोअर सरफेस पे स्टोमेटा रहेंगे तो स्टोमेटा ओपन भी रहेंगे तो वो क्या होगा, पानी इजिली ट्रांसपिरेट नहीं होगा इसमें। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फूड, द ग्लूकोज। सी सपोज अ प्लांट इज producing 100% of glucose molecules in a plant, ठीक है, but at that time the plant never uses all the 100% of the glucose which it is forming inside the plant body, ठीक है। क्या होता है कि जितना 100% अगर ग्लूकोज बन रहा है तो 100% में से 50% जो प्लांट है उस ग्लूकोज को यूज्ड अप कर लेगा, दिस इज यूज्ड बाय द प्लांट। बट फिर भी हमारे पास 50% क्या है, ये लेफ्ट है, ये बचा हुआ ग्लूकोज हमारे पास बचा है, ठीक है। अभी लेफ्ट आउट जो ग्लूकोज है वो है, तो जितना भी बचा हुआ ग्लूकोज रहेगा ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर, कि जितने भी सेल्स हैं प्लांट में सब में ग्लूकोज बना है, तो सभी जो ग्लूकोज हैं, जो मिलियंस ग्लूकोज हैं, सभी आके कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी पूरी एक लॉन्ग चेन बनती है। हाउ, लाइक दिस। GN इंडिकेट्स नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे बाय द बॉन्ड,
और जो ये अभी जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड स्टार्च। तो जो ग्लूकोज यूज नहीं किए गए हैं बाय द प्लांट्स दे विल बी स्टोर्ड एज द स्टार्च। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट्स, तो आंसर इज स्टार्च। ये क्या है? स्टोर्ड। ये क्या है? स्टोर्ड या फिर रिजर्व आप कह लीजिए, रिजर्व फूड। ठीक है, ये प्लांट्स में। बट इफ आई टॉक अबाउट द एनिमल्स, सो हमारी बॉडी में भी जो एक्स्ट्रा फूड है दैट इज स्टोर्ड, ठीक है, एज अ रिजर्व मटेरियल। सो दैट इज नॉट स्टार्च इन आवर केस, ठीक है, दैट इज ग्लाइकोजन, जो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है दिस इज स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल्स। These are two very important questions which can be asked in 1 mark question. So glycogen is a stored form of food in animals and starch is a stored or reserved food in plants. Okay, so after that we will see the photosynthesis. Why are leaves adapted betterly for the process of photosynthesis?